سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی سازش سے ایک بار پھر دنیا کو خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جھوٹا آپریشن کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد مقبوضہ کشمیر میں اور کچھ اور دہشت گرد بھارت کے جنوبی علاقوں میں داخل ہوئے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کر رہا ہے۔ ان بھارتی دعووں کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی سے توجہ ہٹانا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کے خلاف اور نہتے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وفاقی دارالحکومت میں بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں اقلیتی برادری اور نامور فنکاروں نے بھی شرکت کی۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن کشمیری جذبہ ایمانی کے ساتھ بھارتی مظالم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ مودی سرکار کشمیر میں منظم نسل کشی کر رہی ہے۔ کشمیری خواتین کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں۔ بھارتی افواج بزدل ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کشمیریوں کے گھروں میں گھس کر نوجوانوں اور بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ دنیا مسئلہ کشمیر پر نہتے کشمیری عوام اور پاکستانی حکومت کا ساتھ دے، یہ کہنا تھا صدر آزاد کشمیر صدر مسعود کا کشمیر کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں منعقدہ ریلی سے خطاب میں۔ جو جینوسائیڈ واچ ہے اس نے وہ تمام نکات گنوا دیے ہیں آپ کو جس سے نسل کشی ہوتی ہے یا جس سے نسل کشی کی تعریف کی جاتی ہے، تو کیوں سلامتی کونسل مہر بلب ہے ان معصوم بچوں اور بچیوں کی قسم کھاتا ہوں۔ اس جنگ کو ہم ختم کریں گے۔ اس جنگ کا آغاز ہندوستان نے کیا ہے، اس جنگ کو ہم ختم کریں گے۔ جس دن آپ کو ہمارے لہو کی ضرورت پڑے گی صدر صاحب، ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ ہم صرف ریلیاں نکالنے والے نہیں ہیں، ہم جان دینے والی قوم ہے۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، لے کے رہیں گے۔ سکھ برادری کے نمائندہ سردار پرتاپ سنگھ نے کہا مودی سرکار نہتے اور مظلوم کشمیریوں پر ظلم بند کرے، ہم کشمیر بھی واپس لیں گے اور خالصتان بھی بنے گا۔ یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جب ہم سکھ قوم کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو مرد دم تک ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہو، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ پوری قوم اپنے ملک کے ساتھ، اپنے وزیر اعظم کے ساتھ، اپنے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ، اپنے ہر ایک سپاہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم سلامتی اور بقا کے لیے صرف دعا نہیں کرتے بلکہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ Please speak up for the Kashmiri people. We're not at peace right now. I'm a big peace lover, but it's not peace. ریلی میں بچوں، بوڑھوں، مرد و خواتین سمیت ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر میں خون خرابے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کے احتجاج کو بزور طاقت کچلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا تو بھارت دہشت گردی کا ڈرامہ رچا کر الزام پاکستان پر لگا سکتا ہے۔ ہندو اخبار جو ہے انڈیا کا اور ان کا میڈیا اس چیز کو یہ رنگ دے رہا ہے کہ 100 کے لگ بھگ دہشت گرد پاکستان سے داخل ہو چکے ہیں اور وہ اپنے لانچنگ پیڈز پہ موجود ہیں اور کوئی نہ کوئی دہشت گردی متوقع ہے۔ اب یہ وہی خدشہ ہے جس کا ہم باور کرا چکے ہیں اقوام متحدہ کو۔ مجھے ڈر ہے خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ حقائق دنیا سے چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس قسم کا ایک سٹیج ڈرامہ منعقد کرے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ نے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا تحریر کیا گیا 25 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جج ارشد ملک کی پریس ریلیز اور بیان حلفی ان کے خلاف فرد جرم ہے۔ ارشد ملک کے کردار سے دیانتدار ججز کے سر شرم سے جھک گئے۔ ویڈیو مستند شہادت ثابت ہونے کی اس صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ یا نواز شریف سمیت فریقین عدالت میں لا سکتے ہیں۔ ویڈیو اس وقت تک بطور شہادت پیش نہیں ہو سکتی جب تک اصل ثابت نہ ہو جائے۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی حکم نامے میں قرار دیا ہے کہ اس مرحلے پر درست نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ویڈیو اور اس کے اثرات میں مداخلت کرے، کیونکہ متعلقہ ویڈیو کا تعلق اسلام آباد میں زیر التواء اپیل سے ہے۔ FIA تفتیش کر رہی ہے اور مختلف فورمز پر باقی تفتیش ہونا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ معاملے کی تحقیقات پر حکومت یا عدالت کی طرف سے کسی کمیشن کے قیام کی رائے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جج ارشد ملک نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا۔ ارشد ملک لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں، انہیں ابھی تک لاہور ہائی کورٹ نہیں بھجوایا گیا، اس لیے ان کے خلاف تاحال محکمانہ کارروائی کا آغاز نہیں ہوا۔
अरशद मलिक ने बयान हल्फी और प्रेस रिलीज में खुद तस्लीम किया कि वो ब्लैकमेल हुए। जज का ये तस्लीम करना हमारे लिए चौंका देने के मुतरादिफ है। जज के कंडक्ट से मुल्क के हजारों ईमानदार और मेहनती जजेस के सर शर्म से झुक गए। अरशद मलिक ट्रायल के दौरान मुल्जिमान से हमदर्दी रखने वालों से मिलता रहा। उसने ब्लैकमेल होने के हवाले से किसी आला अथॉरिटी को नहीं बताया, न ही खुद को ट्रायल से अलग किया। उम्मीद है अरशद मलिक को असल महकमे में भेजकर इंजबाती कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि वीडियो मुस्तनद शहादत साबित होने की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट या नवाज शरीफ समेत फरीकैन उसे इजाफी शहादत के तौर पर अदालत में ला सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार है कि वो शहादतों का दोबारा खुद जायजा ले, अपीलों का मेरिट पर फैसला दस्तयाब शहादतों से करे या फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दोबारा ट्रायल के लिए फाजिल अदालत को भेज सकती है। तफसीली हुक्मनामे में कहा गया है कि कोई भी वीडियो और टेप उस वक्त तक बतौर शहादत पेश नहीं हो सकती जब तक ये असल साबित ना हो जाए। मुतल्लिका अदालत को देखना होगा कि ये वीडियो एडिट शुदा है या हकीकी। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स को अदालत में पेश करना जरूरी है और वीडियो को अदालत में चलाया जाना भी जरूरी है। अदालत ने करार दिया कि वीडियो उस वक्त दुरुस्त तस्लीम की जाएगी जब वीडियो में मौजूद और बोलने वालों की आवाज़ की शनाख्त हो। वीडियो की बाहिफाजत कस्टडी और अदालत में पेश और साबित करना भी जरूरी है। अदालत ने करार दिया कि जो फरीक वीडियो को बतौर शहादत पेश करेगा उसको वीडियो के तमाम मुतल्लिका मामलात को साबित करना होगा और सोर्स भी बताना होगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि किसी ऑडियो या वीडियो को अदालती फोरम पर ताखीर से पेश करने को शक की निगाह से देखा जाएगा। कैमरामैन नासिर मुगल के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने जज वीडियो स्कैंडल में जज अरशद मलिक के बारे में कहा है कि जज का बयान हलफी और प्रेस रिलीज उनके खिलाफ फर्द जुर्म का एतराफ है। इससे जज का उभरने वाला चाल चलन बदबूदार और सड़ानज़दा है जिससे अदलिया की बतौर इदारा बदनामी हुई। देखिए अब्दुल कयूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जज वीडियो स्कैंडल केस के 25 सफ़हात पर मबनी फैसले में नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में सजा देने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के चाल चलन पर पूरा एक पैराग्राफ तहरीर किया है। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा है कि जज अरशद मलिक की 7 जुलाई की प्रेस रिलीज और 11 जुलाई का बयान उनके खिलाफ फर्द जुर्म का एतराफ है। प्रेस रिलीज और बयान हल्फी से उभरने वाला उनका तस्लीम करदा चलन सड़ानज़दा है जिससे अदलिया की बतौर इदारा बदनामी हुई है। जज अरशद मलिक ने बेशर्मी से बयान हल्फी और प्रेस रिलीज में तस्लीम किया कि उनका मशकूक माजी है जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल हुए। जज अरशद मलिक मुकदमे की समाअत के दौरान मुलजिम के हमदर्दों से मिलते रहे, उन्हें धमकाने के साथ लालच भी दिया जाता रहा, लेकिन जज अरशद मलिक ने अपने सीनियर हुकाम को आगाह किया और ना ही खुद को ट्रायल से अलग किया। फैसले में कहा गया है कि बयान हल्फी के मुताबिक फैसला सुनाने और सजा देने के बाद जज ने सजा याफ्ता शख्स से दूसरे शहर में उसकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। सजा याफ्ता शख्स के बेटे से दूसरे मुल्क जाकर मिलते रहे, यहाँ तक कि अपील के लिए अपने फैसले की कमजोरियां बताते रहे। वाज़ेह रहे जज अरशद मलिक ने बयान हल्फी में तस्लीम किया था कि वो नवाज शरीफ को सजा सुनाने के बाद जाती उम्रा में उनसे जाकर मिले और उनके बेटे हुसैन नवाज से भी सऊदी अरब में जाकर मिले थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि एक जज का तस्लीम करदा ऐसा चलन दहला देने वाला है। इस चलन के बाइस हजारों मेहनती और ईमानदार जजों के सर शर्म से झुक गए। तवक्को है कि जज अरशद मलिक की लाहौर हाई कोर्ट वापसी के बाद उनके खिलाफ फौरी महकमाना तादीबी कार्रवाई के लिए इंक्वायरी की जाएगी। शाहराए दस्तूर से नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मीडिया पर पाबंदियां लगाकर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को दुनिया के सामने आने से रोका जा रहा है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मजमून तहरीर किया है। मजमून में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने कश्मीर की हैसियत बदलने का फैसला सियासी मशावरत के बजाय पूरी सियासी क़यादत को गिरफ्तार करके किया। कहा गया है कि मोदी सरकार ने मकासद के असूल के लिए टेलीफोन लाइन्स काटी, मोबाइल इंटरनेट बंद और पूरी वादी में कर्फ्यू लगाया। भारत का मीडिया मोदी सरकार की जानिब से इख्तियार के गलत इस्तेमाल का जश्न मना रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर के मामले पर जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल को टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तब्दील किया। भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म ने जर्मन चांसलर को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से भी आगाह किया। मजलूम कश्मीरियों के हक और सिफाक भारत के खिलाफ इस्लामाबाद की सहाफ़ी बरादरी की तरफ से भी रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए विफाकी वज़रा का कहना था कि नरेंद्र मोदी नाज़ी हिटलर के नक्श कदम पर चल रहा है। कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान लाजिमो मलजूम है, भारत से कश्मीर की आज़ादी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे।
डी चौक इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की तरफ से भारतीय जबर और इस्तेबदाद के खिलाफ और मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए निकाली गई रैली से खिताब में वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का कहना था कि पाक फौज, अवाम और हुकूमत कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को नहीं दबा सकता। जब तक आज़ादी नहीं मिलती इंशाअल्लाह हम हर हद तक जाएंगे और इंशाअल्लाह कश्मीरियों की आज़ादी के लिए अपने तान बान की बाजी लगाएंगे। मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि हर पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ खून का रिश्ता रखता है। भारत इंसानी हकूक का कातिल बन गया है। मोदी हुकूमत मकबूजावादी में नस्ल कुशी पर तुली हुई है। कश्मीर हमारे वजूद का हिस्सा है और जो जुल्म, जो तकलीफ, जो मसाइब और मुश्किलात कश्मीरी भुगत रहे हैं, पाकिस्तानी उन चोटों को, उन जख्मों को अपने जिस्मों पे महसूस कर रहे हैं। रैली से पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक और हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने भी खिताब किया। हमारी बहनों, औरतों को अगवा किया जा रहा है, वहाँ पे किसी की इज्जत महफूज नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को जेलों में बंद किया जा रहा है। बिगिनिंग हो चुकी है इंडिया को डिसइंटीग्रेट होने की, क्योंकि आरएसएस जिस अंदाज से चल रहा है ये इंडिया को तोड़ेगा। मुकर्रीन का कहना था कि मोदी कश्मीरियों के खून का प्यासा है। मुस्लिम ममालिक और बाकी दुनिया को मकबूजा कश्मीर की खौफनाक सूरत हाल का फौरी नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन शहजाद रफीक के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान FATF ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है। APGC से मुताल्लिक कहा कि किसी मुल्क को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता। ब्लैक लिस्ट करने का इख्तियार सिर्फ FATF को हासिल है। FATF का इजलास 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक पेरिस में होगा। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ की बिलियन ट्री सुनामी में संगीन बेकायदगियों के इंकशाफ की खबर सच साबित हो गई है। अदालत ने भी सुरखरू कर दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पेशावर ने सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज मलिक और जंग ग्रुप के खिलाफ बिलियन ट्री सुनामी खबर की इशात पर हतक इज़्ज़त और हर्जाने का दावा खारिज कर दिया है। अदालत ने करार दिया है कि 7 फरवरी को जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खबर का ना तो मवाद काबिल एतराज़ है और ना ही दरख्वास्त गुजार के खिलाफ है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी दस्तावेजात पर मबनी एक मालूमाती खबर है। खबर में एक सियासी शख्सियत की जानिब से बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा शुरू करने और उसमें खुर्द बुर्द की निशानदही की गई थी। सेक्रेटरी जंगलात, माहौलियात और वाइल्ड लाइफ नजर हुसैन शाह ने बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट में बेकायदगियों के हवाले से शायाशुदा खबर पर सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज मलिक और जंग ग्रुप के खिलाफ मकामी अदालत में हतक इज़्ज़त और हर्जाने का दावा कर दिया था। और अभी आपको बताएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा ने सदर मुमलिकत की जानिब से मुकर्रर किए गए 2 नए अरकान इलेक्शन कमीशन से हलफ लेने से माजरत कर ली है। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा का मौक़िफ़ है कि नए अरकान का तकर्रुर आइन के खिलाफ किया गया है। ज़राए का बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दोनों नए अरकान इलेक्शन कमीशन से हल्फ लेने से माजरत करते हुए वज़ारत पार्लिमानी उमूर को फैसले से आगाह कर दिया है। बलूचिस्तान से मुनीर अहमद काकड़ और सिंध से खालिद महमूद सिद्दीकी को इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनाया गया है और सदर मुमलिकत की जानिब से दोनों नए अरकान इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी की गई है। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई जवाज़ नहीं कि वो तकर्रुर किए गए अरकान से हल्फ ना लें। ये बात उन्होंने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास ओथ ना देने का कोई जवाज़ या जुरिस्डिक्शन नहीं है। जो आर्टिकल 214 में उनको ओथ देना है, नोटिफिकेशन अगर सामने आए तो उनको ओथ देना है, ये रिक्वायरमेंट है। और वो एज अ हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज आर्टिकल 199 में या 184(3) में जुरिस्डिक्शन उनकी नहीं है कि वो वहाँ बैठे हों, वैलिडिटी चेक करें अपॉइंटमेंट्स की, कोई को वारंटो वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू डेफरेंस, इज़्ज़त के साथ उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है ये ओथ ना लेने का। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्री को आइन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसे पार्लियामेंट और आइन पर हमला करार दिया है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान इब्तदाई मशावरत नहीं हुई। सदर मुमलिकत ने 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी की।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि बरतानवी अखबार डेली मेल और जाली खबर देने वाले सहाफ़ी ने लीगल नोटिस का जवाब अब तक नहीं दिया। उनके लीगल नोटिस का जवाब डेली मेल और उसके रिपोर्टर ने 22 अगस्त तक देना था। शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि बरतानवी अखबार डेली मेल और जाली खबर देने वाले रिपोर्टर के खिलाफ लीगल नोटिस बहुत पहले भेजा जा चुका है। डेली मेल ने कहा था कि वो बहुत जल्द उनके लीगल नोटिस का जवाब देंगे, ताहम ये नहीं बताया था कि कब तक देंगे। डेली मेल के रिपोर्टर डेविड रोज ने भी 17 अगस्त तक जवाब दाखिल कराने का कहा था। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद आराई ने कहा है कि उनकी दरख्वास्त पर के इलेक्ट्रिक ने पोल पर लगे केबल वायर्स की कटिंग रोक दी है। केबल वायर्स में करंट नहीं होता, फिर भी पूरी कोशिश है कि आइंदा करंट लगने के सानिहात पेश ना आए। गैर कानूनी केबल वायर्स को हटाने में मदद करेंगे। जो हम प्रपोजल देंगे उसके मुताबिक 120 से पाएंगी और उस 120 के मुताबिक ही केबल ऑपरेटर्स अपने ये इनके पोलों को इस्तेमाल करेगा। और ये क्योंकि ये इनका कहना था कि हमारे पोल को खाली कर दें, मगर हमने ये बताया कि पूरी दुनिया भर के अंदर जो इंफॉर्मेशन का जरिया है, जो ज़राए इब्लाग को पहुँचाने का जरिया बिजली के पोल इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में होते हैं। उस तरह ये हम इन पोलों के जरिए ही जो है हम सर्विस को डालते हैं। अगर ये आपने इसको बंद कर दिया तो पूरे कराची का ज़राए इब्लाग बंद हो जाएगा। इस पर इन्होंने इस बात को समझते हुए हमारी बात को मानते हुए इस ऑपरेशन को रोक दिया और अगले हफ्ते जो है 120 से होंगी, जिसके मुताबिक हम भी अमल करेंगे और के इलेक्ट्रिक भी हमारा साथ देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुज़ार ने तमाम सरकारी मुलाजमीन को सेहत इंसाफ कार्ड जारी करने का फैसला कर लिया है। सरकारी मुलाजमीन 7.25 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला ने इस सिलसिले में तमाम अमूर जल्द तय करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की भी मंजूरी दे दी। फोर्ट मनू को सेहत के लिए बेहतरीन मकाम बनाने का ऐलान भी किया है। पाकिस्तान और चीन के नौजवानों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए गवादर में पहली यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि गवादर के मास्टर प्लान के तहत ये स्मार्ट सिटी होगा। लैंड रिकॉर्ड के निज़ाम को खुदकार बना रहे हैं और सरमायाकारों की सहूलत के लिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट जल्द काम शुरू कर देगा। गवादर में पाकिस्तान चीन यूथ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा कि गवादर के मास्टर प्लान को हतमी शक्ल दे रहे हैं, सरमायाकारों को 1 विंडो सहूलत फराहम करेंगे। कभी कभी इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता। बीवी को शौहर की हद से ज्यादा मोहब्बत पसंद ना आई। अमाराती खातून ने तलाक का मुतालबा कर दिया। कहा ना ये लड़ता है, ना डांटता है, ना नाराज होता है, बहुत प्यार करता है, ख्याल करता है, तोहफे भी देता है, घर की सफाई भी करता है और खाना भी पकाता है, बर्तन भी बहुत मजे से धोता है। शौहर में 1 साल तक इतनी खूबियां देखकर बेगम अदालत चली गई, तलाक का मुतालबा कर दिया। कहा कि घर में इतना सुकून है कि उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। अदालत में शौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनकी कोशिश रही है कि वो हर तरह से अपनी बीवी का ख्याल रखें और इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे, जबकि इन्हें कई दोस्तों और रिश्तेदारों ने बीवी के साथ सख्त रवैया इख्तियार करने का कहा था। हम वो ऐसा नहीं करना चाहते।